پاکستان میں عوامی مسائل کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ عوامی مسائل کا دیوتا ہمیشہ سے غریب عوام سے اپنی بھینٹ وصول کرتا آ رہا ہے۔ بظاہر تبدیلی آنے کے باوجود بھی جعلسازوں کی جعلسازی میں کوئی کمی نہیں آئی، حتیٰ کہ مسیحائی جیسے مقدس شعبے میں بھی عوام دشمن مفاد پرستوں اور انتظامیہ کی کالی بھیڑوں کی ساز باز جوں کی توں برقرار ہے۔ محتاط اندازے کے مطابق پاکستان میں 6 لاکھ سے زائد جعلی ڈاکٹرز اور عطائی کلینکس موجود ہیں، جن میں سے 1/3 سندھ سرکار کے ناک کے نیچے جعلسازی کر رہے ہیں۔ صرف یہی نہیں، حکومتی نگرانی میں چلنے والی سرکاری ڈسپنسریوں کی زبوحالی اور بے ضابطگیاں بھی عروج پر ہیں۔ آج کی ایپیسوڈ میں ٹیم گرفت نے فوکس کیا ہے کراچی کے ان سرکاری ڈسپنسریز کو جہاں حکومت کا خاطر خواہ بجٹ صرف سرکاری کاغذوں میں تو نظر آتا ہے، لیکن غریب عوام کو ان ڈسپنسریز سے کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا۔ کراچی کے ضلع غربی کا شمار دیہی اور کچی آبادی میں کیا جاتا ہے۔ ضلع وسطی کی آبادی تقریباً 50 لاکھ ہے اور سرکاری ڈسپنسریز KMC کے زیر انتظام آتی ہیں، لیکن عوامی شکایات کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ ٹیم گرفت نے ماضی میں بھی ضلع غربی کے بلدیہ ٹاؤن کی ڈسپنسریز پر خصوصی پروگرام کیا تھا، جس میں KMC کے زیر انتظام سرکاری ڈسپنسریز کی ہوش ربا صورتحال سامنے آئی۔ حکام بالا تک غریب عوام کی آواز پہنچائی تھی تاکہ ان کے مسائل کا حل نکالا جائے۔ تسلسل سے مزید عوامی شکایات موصول ہونے کی بنا پر ٹیم گرفت نے بلدیہ ٹاؤن کی سرکاری ڈسپنسریز کے فالو اپ پر پروگرام کرنے کا فیصلہ کیا اور رخ کیا بلدیہ ٹاؤن کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مرتضیٰ رضوی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گرفت۔ ناظرین، سلسلہ یہ ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں اندر ہم اپنے آپ کو ایک کمفرٹ زون کی طرف لے کر چلے جاتے ہیں، آرام طلبی کی طرف لے کر چلے جاتے ہیں، اور یہی آرام طلبی آگے بڑھ کے جب ہمارے بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں تو سب سے زیادہ جو رجحان ہوتا ہے وہ اس چیز کی طرف ہوتا ہے کہ کوئی سرکاری نوکری مل جائے، اور سرکاری نوکری ملنے کے بعد کیا کیا جاتا ہے کہ صرف اور صرف آرام طلبی کی جاتی، کوئی کام نہیں کیا جاتا۔ اس آرام طلبی کا ایک شاخسانہ ہم آپ کو آج دکھا رہے ہیں۔ یہ ہے بلدیہ ٹاؤن کے اندر ایک سول ہاسپٹل جس کو نام دیا گیا ہے سول ہاسپٹل 2، اور یہ تقریباً 12 لاکھ کے قریب آبادی کو جو ہے وہ کیٹر کرنا ہے اس نے، لیکن پچھلے 8 سے 9 سال سے یہاں پہ آج تک اس کی بلڈنگ کی کمپلیشن نہیں ہوئی ہے۔ ٹیم گرفت پہنچی بلدیہ کے زیر استعمال ہسپتال جو کہ سول ہسپتال 2 کے نام سے معروف تھا۔ سندھ حکومت کے زیر انتظام 50 بستروں کا یہ بدقسمت ہسپتال گزشتہ 10-12 سالوں سے زیر تعمیر تھا۔ مرحلہ وار بجٹ بھی مہیا کیا جا رہا تھا، لیکن تکمیل نہ ہونے کے حوالے سے مقامی لوگوں کا خیال تھا کہ بجٹ ہسپتال کی عمارت پر لگنے کے بجائے ذمہ داروں کی خرد برد کی نظر ہو رہا ہے۔ اس موقع پر مقامی آبادی کے ساتھ PTI ڈسٹرکٹ ویسٹ کے صدر امجد آفریدی بھی موجود تھے۔ ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں اس وقت PTI کے جو ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہیں امجد صاحب۔ امجد صاحب، یہ بتائیں کہ یہاں پہ سول 2 کے نام سے ہسپتال بنایا گیا، انیشیٹ کیا گیا آج سے جو ہے وہ کافی عرصے پہلے جب نعمت اللہ خان اور جو سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ تھی، اس کے بعد سے اب تک یہاں پہ کیا صورتحال ہے؟ بھائی جان، سب سے پہلے بہت شکریہ آپ کا۔ آپ ماشاءاللہ ان گنجان اور اتنے دور علاقوں میں پہلے جس طرح سے آپ نے ماڑی پور میں بھی دورے کیے، یہ بہت علاقہ اس طرح کے کوئی دیکھ بھال نہیں ہے، ایک کچی آبادی ہے، ادھر تباہی ہوئی ہے۔ یہ تقریباً آج 8 سے 10 سال ہو گئے، مشرف صاحب کے دور میں یہ سٹارٹ ہوا تھا اور اس کے 3 سے 4 بار فنڈ ریلیز ہو چکے ہیں، مگر کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ یہاں کی اورنگی کی آبادی، یہاں بلدیہ کی آبادی، قریب آبادیاں لگتی ہیں، لوگوں کے لیے یہ اس طرح تھا کہ ان کو نہ جناح میں جانا پڑتا نہ سول میں جانا پڑتا۔ تو یہ ان کی لڑائی میں سندھ گورنمنٹ کی اور کراچی KMC کی لڑائی میں عوام پس رہی ہے اور عوام بیٹھی ہوئی ہے۔ ظلم ہے، ظلم کی انتہا ہے۔ لوگ یہاں سے سول اور جناح جاتے ہیں، یہاں 2-2 گھنٹے کا راستہ لگتا ہے، کرایہ خرچ ہوتا ہے، پھر وہاں جا کر خوار ہوتے ہیں۔ یہ 50 بیڈ کا ہاسپٹل ہے اور بند ہے عوام کے لیے، کوئی اس کا فرسان حال نہیں ہے۔ مقامی یہاں کے MPA، مقامی MNA خاموش ہوئے بیٹھے ہیں، انہیں بھی کوئی پتہ نہیں، سندھ گورنمنٹ سوئی بیٹھی ہے۔ تو یہ ہاسپٹل آن ہونا، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا آپ بھی اس کی آواز اٹھائیں۔ ہم بھی انشاءاللہ کورٹ میں بھی جا رہے ہیں، اس کو ہاسپٹل کو آن کروانے انشاءاللہ۔
यहाँ पे क्या सूरत हाल है? आप उससे थोड़ी देर पहले बात हो रही थी तो आपने बताया था कि यहाँ पे जब तक नेमतुल्लाह खान और सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट रही और उसके बाद जो है मुस्तफ़ा कमाल भी है, उस वक्त भी यहाँ पे फंड रिलीज़ होता रहा, काम चलता रहा। उसके बाद से यहाँ पे क्या सिलसिला ऐसा हुआ कि बिल्कुल ही काम होने का सिलसिला रुक गया है? वरना जी ये तकरीबन पीपल पार्टी का एक लिहाज से गढ़ है यूसुफ गोड ये हिसाब से, लेकिन इस इलाके के लिए उन लोगों ने कुछ नहीं किया। यहाँ के मैंने अक्सर कहता पटेल और एमपीए पीपल पार्टी के तकरीबन आए। इस इलाके के लिए 2010 में तकरीबन ये हॉस्पिटल तैयार हुआ है 2010-12 में। उसके बाद ना इस पे कोई काम हो रहा है ना गरीबों के लिए कोई सहूलत दे रहे। अच्छा वो जी जो फंड आता है वो नीचे कारकुनों के अंदर तकसीम हो जाते, मामला था कि नहीं पड़ रहे। बेने साहब कह रहे हैं कि भाई हमारे बंदे लग जाए, एमपीए साहब कह रहे हैं कि हमारे लग जाए। इसकी वजह से गरीब आदमियों के जीना हराम हो। मैंने एमपीए कौन है यहाँ के? जी कादर पटेल साहब है, मैंने है एमपीए तो अभी अस्कानी साहब इससे पहले वो नदीम भट्टो साहब था, लेकिन हमारे इलाके के लिए कोई काम नहीं हुआ। हम यहाँ पे जलील से जलील चूंकि हम अगर बच्चों को सेवल तक पहुंचा रहे कम से कम 1000-1200 हमारा हॉस्पिटल का खर्चा, रास्ते का खर्चा। हम दिहाड़ी मार लोग हैं, दिन का 500-1000 रुपये कमाने वाले लोग हैं। अगर हमें यहाँ सहूलत मिल जाए, हमारी गवर्नमेंट से हेल्थ जाए तो हमें अल्लाह दुआएं करेंगे, दिल से दुआएं निकलेंगी अल्लाह रब्बुल इज्जत को आबाद कर ले, लेकिन भाई गरीब के लिए कोई यहाँ नहीं सुनता है। कभी आपने कांटेक्ट करने की कोशिश की यहाँ के ठेकेदार को, उससे पूछा उसके क्या मसाइल हैं, क्यों जो है इस बिल्डिंग को जो है वो कंप्लीट नहीं कर पा रहा है? ये ठेकेदार का कहना ये जी कि हमें यहाँ पर फंड रिलीज़ नहीं किया जाता, हमें फंड नहीं दिया जाता। यहाँ के जो एमपीए साहब जीते हुए हैं यहाँ से लियाकत अली अस्कानी साहब, ये उनकी मेहरबानियों का नतीजा है कि हम इस वक्त कोहिस्तान और पंजगूर जैसे मसाइल का सामना कर रहे हैं। हम सिटी के रहने वाले हैं और इस सिटी का हाल आपने आते हुए भी देखा होगा कि क्या है। ये 40 साल इक़्तिदार इनको यहाँ से मिला है, उसका नतीजा इन्होंने हमें ये दिया है। हमारा कोई काम नहीं करते। आप कोई भी चीज़ देखें, आप रोड देख लें, सीवरेज देख लें, तालीम देख लें, हॉस्पिटल देख लें, ना कोई कॉलेज दिया हमें। पाकिस्तान बनने से अब तक ना हमें कोई कॉलेज मिला है, ना हमें कोई हॉस्पिटल मिला है, ना हमें और कोई बुनियादी ज़िंदगी की सहूलत दी गई है। ये तकरीबन 10 साल से यहाँ की आवाम के को फुटबॉल बनाया हुआ है, उसके साथ खेल रहे हैं। कभी बोल रहे हैं सूबाई गवर्नमेंट के पास है, कभी बोल रहे हैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के पास है, कभी कह रहे हैं कि केएमसी के पास है। फंड रिलीज नहीं हो रहे, फंड का इशू है और डॉक्यूमेंट्स में ये तो 3-4 बार बन भी चुका है इसके, क्योंकि पैसे रिलीज हो चुके हैं 2-3 बार। अच्छा, इंतजामी लिहाज से तो ये केएमसी के अंडर आता है ना? बिल्कुल, इंतजामी लिहाज से केएमसी के अंडर आता है। यहाँ मंशियात फरोश इधर बैठे होते हैं, वो सिरकट लगा कर बैठे होते हैं, यहाँ पर बोतल पी जाती है, यही काम चल रहे हैं। इस और कुछ नहीं चल रहा। लोगों की जहाँ खिदमत करनी है वहाँ लोगों को उल्टा मरीज बनाया जा रहा है। टीम गिरफ्त के पहुंचने से जैसे सबको जबान मिल गई हो। टीम गिरफ्त की जेर तामीर अस्पताल में एक ऐसे फर्द से भी मुलाकात हुई जिसका दावा था कि इस अस्पताल को बनवाने में उसके आबाओ अजदाद की खिदमत थी। उसका कहना था कि उसके दादा ने 2006 में इस इमारत का संगे बुनियाद रखा था। तकरीबन फिनिशिंग का काम हो चुका है, टाइल्स लग चुके हैं, बाकी सारी फ्लोरिंग के काम हो चुके हैं, प्लास्टर हो चुका है। उसके बाद सिर्फ जो सिलसिला रह गया था वो यहाँ पे लाके फिनिशिंग होनी थी, वायरिंग होनी थी, ऑपरेशन पे जाना था। लेकिन उसके बाद भी अभी तक ये सिलसिला जारी नहीं हो सका है और ये पिछले 8-10 साल से सिलसिला रुका हुआ है। यहाँ पे मुकामी हमारे पास लोग भी मौजूद हैं। सर बताइएगा थोड़ा सा, आप यहाँ पे जो मुकामी हैसियत में आप देख रहे हैं तो ज़रूरत क्या है यहाँ पे? आप कितने दूर और कहाँ जाते हैं अपने अगर इलाज मुआवजे की ज़रूरत पड़ती है तो? हमारा अगर इलाज की ज़रूरत पड़ती है तो सिविल अस्पताल होता है या मुर्शिद अस्पताल, वो तो बहुत महंगी तरह है। या सिविल अस्पताल, जिना अस्पताल में अगर एक्सीडेंट यहाँ हो जाता है तो मेरे ख्याल में रास्ते में ही बंदा दम तोड़ देता है। तो इसको तकरीबन 2006 में इन लोगों ने, मेरे वालिद साहब ने, दाऊद बच्चा ने इब्तिदा किया था। 2006 के बाद जितना भी बजट लगा है वो आपके सामने इस वक्त। इधर कुछ समझ नहीं आती है। कभी केएमसी जब हम लोग काम करते हैं तो सिंध गवर्नमेंट बोलते हैं केएमसी के हाथ में, केएमसी के जब पास जाते हैं बोले सिंध गवर्नमेंट के हाथ में। लेकिन केएमसी जो है वो हमें काम करने नहीं दे रही है, यहाँ पे कोई फंड नहीं दे रही है। असल ज़मीन जो है ना वो है रेवेन्यू की, डीसी साहब, वो लीज शुदा है, ये ज़मीन भी लीज शुदा है, लेकिन केएमसी जो है वो यहाँ पे नहीं छोड़ रही है काम करने। ये तो सरकारी इमारत बनी हुई है और इसके अंदर मेरे ख्याल में ऐसा है कि कोई प्राइवेट बंदा बैठा हुआ है। देखिए, फुरसान हाल ही है, हालात देखने ऊपर से छत के, और कुछ साथी आ रहे हैं, वो इलाके के लोग कह रहे हैं कि हम पैसे देते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि फ्री में चेकअप होता है। किसी की भी एब्सेंटी कहीं पे नजर नहीं आ रही, सबके साइन हुए हुए।
नाजरीन, यहाँ पे सिलसिला हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं तो करप्शन की नई नई शक्ल सामने आती जा रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं आबदाबाद डिस्पेंसरी के, जो कि बल्दिया टाउन के अंदर ये मौजूद है। वहाँ पे इत्तलात ये हैं कि एक प्राइवेट आदमी है जो इस डिस्पेंसरी पे लोगों से, आने वाले लोगों से जो अपना इलाज कराने आते हैं, उनसे बाकायदा से पैसे लेता है। यहाँ के मुकामी लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। फजल साहब, ये बताएं क्या सिलसिला है यहाँ पे? यहाँ पे सिलसिला यही है, तो सरकारी इमारत बनी हुई है और इसके अंदर मेरे ख्याल में ऐसा है कि कोई प्राइवेट बंदा बैठा हुआ है और वो अपने मन पैसे लेते हैं। पैसे लेता है। कितना पैसा लेते हैं? बस जो प्राइवेट अस्पतालों का या आम क्लिनिकों का जो रेट होता है वही लेते हैं। टीम गिरफ्त बल्दिया टाउन के इलाके आबिदाबाद की एक और सरकारी डिस्पेंसरी पहुंची। वहां का तिब्बी अमला गायब था, लेकिन हाजिरी रजिस्टर पर पूरे अमले की हाजिरी दर्ज थी। नाज़रीन, इस डिस्पेंसरी की, आबदाबाद डिस्पेंसरी की हालत आपके सामने है। किस तरीके से छत जो है वो उसकी हालत देखिए। इसके अलावा ये देखें कि यहाँ पे इस वक्त हम आए हैं 11:30 बज रहे हैं। जो ड्यूटी आवर्स हैं, ड्यूटी आवर्स के मुताबिक तकरीबन 2 बजे तक यहाँ पे डॉक्टर्स को ड्यूटी करनी होती है, तो वो ड्यूटी के लिए डॉक्टर्स भी मौजूद नहीं है। आप यहाँ पे क्या हैं? वैक्सीनेटर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कोरोना ड्यूटी लिखी हुई है। यहाँ पे नाजरीन कोरोना ड्यूटी लिखी हुई है, लेकिन आगे चल के ये जो अभी साजिदा साहिबा का जिक्र किया जा रहा था कि ये कोरोना की ड्यूटी पे हैं, तो यहाँ पे कोरोना ड्यूटी लिखा हुआ नहीं है। इसके अलावा एक और चीज़ है, वो ये कि यहाँ पे किसी की भी एब्सेंटी कहीं पे नज़र नहीं आ रही, सबके साइन हुए हुए। ये घोस्ट अमला न सिर्फ गरीब आवाम के हक पर डाका डाल रहा था, बल्कि अवामी टैक्सों से मिलने वाली तनख्वाहें भी हड़प कर रहा था। कोई एब्सेंट नहीं है। अच्छा, ईद की छुट्टियों में भी गलती से एब्सेंट लग गया था उनसे। साथ ही साथ हाजिरी रजिस्टर में ये बात भी देखी जा सकती थी कि कोई भी शख्स पिछले 5-6 माह में गैर हाजिर नहीं था। अमले की इस जांपशानी की दाद देनी चाहिए, लेकिन मसला ये है कि झूठ के पैर नहीं होते। यहाँ आने वाला हर मरीज और तीमारदार इस बात का बार बार इजहार करता नजर आ रहा था कि यहाँ डॉक्टर और तिब्बी अमला तो मौजूद ही नहीं होता। माशाल्लाह से बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त काम चलता है यहाँ पे। यहाँ पिछले कोई 6 महीने में सिर्फ एक जो है वो एब्सेंटी है, और वो भी एक खातून है। इसके अलावा और कोई सिलसिला नहीं है। आज की तारीख की अगर देखते हैं तो रिजवाना जावेद साहब, इनकी अभी तक अटेंडेंस नहीं है। बाकी साजिदा जावेद साहिबा की जो है कोरोना की जो है वो ड्यूटी बताई जा रही है, लेकिन कोरोना की ड्यूटी की यहाँ पे लिखा होना चाहिए। सरकारी डिस्पेंसरी के एक कमरे से बड़ी तादाद में जायदुल मियाद अद्वियात भी बरामद हुई। ताज्जुब था कि एक्सपायर्ड होने के बावजूद इन्हें इस कदर संभाल कर क्यों रखा गया था। करप्ट तिब्बी अमले से कुछ भी उम्मीद की जा सकती थी। 2018 मार्च की इसकी मैन्युफैक्चरिंग है और यूज विद इन 2 ईयर्स लिखा हुआ है, और ये अभी तक सील्ड हालत में ये बोतल यहाँ पे मौजूद है। नाज़रीन, ये पूरा स्टॉक यहाँ पे इस तरीके से मौजूद है। कोई एक दवाई को कहा जाए कि गलती से आ गई या रह गई, यहाँ पे स्टॉक पूरा मौजूद है। तकरीबन 50 बोतल ये हो सकती है, और इसके नीचे भी जो है वो, जी हाँ, इसके नीचे भी इसी तरीके से ये बोतलें मौजूद हैं, जो तकरीबन 200 के करीब बोतलें हो जाएंगी अगर हम देखें। और ये सब की जो एक्सपायरी है वो ख़त्म हो चुकी है, 2 साल के अंदर इस्तेमाल की जानी थी। 2018 मार्च का इनका मैन्युफैक्चरिंग है जी। नियर एक्सपायरी है 12वां महीना 2020, 12वें महीने 2020 में ये एक्सपायर हो जाएगा। तकरीबन 3 महीने का रह गया सिलसिला। ठीक है, लेकिन सिलसिला ये है कि जिस तरीके से ये दवाइयाँ रखी हुई हैं, गंद अटी हुई है इनके ऊपर, और क्योंकि ये बेसिक हेल्थ यूनिट है तो मुझे यहाँ पे कोई ऐसी दवाई नज़र नहीं आ रही जिसके अंदर पैरासीटामोल हो बच्चों को देने के लिए, कोई ऐसी एंटी एलर्जी की दवाई हो कि जो नज़ला खांसी बुखार में काम आती हो, तो वो कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही मुझे। ये सिरिंज मैंने अभी इधर ही से उठाई हैं, इनकी भी कोई एक्सपायरी 2023 तक की है, लेकिन जिस जगह पे इससे मैं उठा रहा हूँ, आप ये भी देख लें, अंदर आएँ।
یہ شاٹ لے لیں کہ کہاں پہ یہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں کہ جہاں پہ یہ کمرہ پورا اس کی چھت اگر دکھائیں گے تو پوری گر رہی ہے اور کسی بھی وقت کسی حادثے کا سبب بن سکتی ہے. فرسان حال ہی ہے حالات دیکھنے اوپر سے چھت کے, اور کچھ ساتھی آ رہے ہیں, وہ علاقے کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم پیسے دیتے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فری میں چیک اپ ہوتا ہے. ڈاکٹر موجود نہیں, ابھی 11-12 بج گئے ہیں, تقریباً 11:45 ہو گئے. حالات اندر کی دیکھیں, صفائی کا نظام دیکھیں, یہ میڈیسن پڑی ہیں, ایکسپائر مال دے رہے ہیں اور ہوتے بھی نہیں ہیں. کوئی چیک اپ کے لیے بھی اتنے زیادہ لوگ نہیں آتے. علاقے کے لوگوں کو اس سے فائدہ نہیں ہے, الٹا نقصان ہی ہو سکتا ہے. اور اگر یہ جب ایکسپائر ادویات یہاں پہ رکھی ہوں گی اور ان کے استعمال سے کسی کو کوئی نقصان ہو سکتا ہے. اینٹی ملیریل یہاں پہ دوائیاں رکھی ہوئی ہیں, لیکن وہ بھی کسی ایسی جگہ پہ دوائیوں کے رکھنے کے لیے کوئی ایک خاص جگہ بنائی جاتی ہے جہاں پہ ٹیمپریچر کنٹرول کیا جاتا ہے, جہاں پہ صفائی ستھرائی کا خیال رکھا جاتا ہے. یہاں پہ کوئی صفائی ستھرائی کا کوئی ایک کانسیپٹ نہیں ہے کہ یہاں پہ صفائی ستھرائی کی جائے. یہ شاید چوکیدار یہاں پہ رہتا ہے تو وہ اس نے چادر وغیرہ بچھائی ہوئی, اپنا تکیہ رکھا ہوا اس نے. یہی نہیں, عابد آباد کی اس بدحال ڈسپینسری میں ایک کمرہ ایسا بھی تھا جو چھت کا پلاسٹر اکھڑنے کی وجہ سے قابل استعمال نہیں رہا تھا, لیکن اس ناقابل استعمال کمرے میں موجود تھے ایک بڑی تعداد میں قابل استعمال سرنجز اور انجیکشنز جو کہ ایکسپائر بھی نہیں ہوئے تھے, لیکن معلوم نہیں انہیں کیوں اس نامناسب طریقے سے رکھا گیا تھا. ایک گمان یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آہستہ آہستہ کر کے عملہ انہیں ناقابل استعمال کمرے میں منتقل کرتا ہو اور پھر موقع ملتے ہی انہیں باہر کسی میڈیکل اسٹور پر فروخت کر دیا جاتا ہو. یہاں پہ انجیکشن رکھے ہوئے ہیں, یہ ابھی ایکسپائر نہیں ہوئے ہیں. اگر یہ ایکسپائر ہو گئے ہوتے تو اس جگہ پہ, ایسی جگہ پہ جہاں پہ یہ کمرہ قابل استعمال نہیں ہے تو ایسی جگہ پہ نہ رکھے ہوتے. لیکن بیسکلی فنڈز آ جاتے ہیں, فنڈز کا بے دریج استعمال, ایک تو صحیح جگہ پہ استعمال نہ ہونا, اور پھر اس کے بعد اب یہی چیزیں کچھ عرصے بعد کسی میڈیکل سٹورز پہ آپ کو نظر آئیں گی. تو یہ سلسلہ ہے یہاں کا. یہ سرنج میں نے ابھی ادھر ہی سے اٹھائی ہیں, ان کی بھی کوئی ایکسپائری 2023 تک کی ہے, لیکن جس جگہ پہ اس سے میں اٹھا رہا ہوں, آپ یہ بھی دیکھنے اندر آئیں, یہ شاٹ لے لیں کہ کہاں پہ یہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں کہ جہاں پہ یہ کمرہ پورا اس کی چھت اگر دکھائیں گے تو پوری گر رہی ہے اور کسی بھی وقت کسی حادثے کا سبب بن سکتی ہے. لیکن اس کو شاید کمرے کو بند کر. پروگرام میزبان نے کسی ذریعے سے اس بدقسمت ڈسپینسری کے غیر حاضر ڈاکٹر کا موبائل نمبر حاصل کر کے اسے کال کی. جی السلام علیکم. جی ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں, جی جی وہاں پہ میں پولیو کمپین میں UCM میں ہوں, تو ہماری آج بات سپروائزرز کی ٹریننگ ہے. ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ وہ پولیو کی ایمرجنسی ڈیوٹی پر ہے. یہ کیسے ممکن تھا کہ سرکاری ڈسپینسری کو گھوسٹ عملے کے رحم و کرم پر چھوڑ کر تعینات ڈاکٹر پولیو کی ایمرجنسی ڈیوٹی پر تعینات کیا گیا. یہ کچھ انجیکشنز اور سرنجز پڑی ہوئی ہیں جن کی ابھی ایکسپائری قریب نہیں ہے, مطلب 2022 تک کی ایکسپائری ہے. تو یہ مس مینجمنٹ نہیں ہے کیا؟ یار ویکسینیٹر جو ہے نا, جی یہ ویکسینیٹر سرنجز وغیرہ رکھتے ہیں, جو ویکسینیٹر یہاں فکس سائڈ پہ بیٹھتی ہے نا, اس کا نام ہے بشرا. ذمہ داری تو آپ کی ہے, اور بشرا صاحبہ تو ہے نہیں موجود, بشرا صاحبہ تو اٹینڈنس میں ہی نہیں ہے. تو یہ بشرا کی سرنجز پڑی ہوں گی بیٹا وہاں. سر ذمہ داری تو لیکن آپ کی بنتی ہے نا, بشرا صاحبہ کو اگر دیکھنا ہوگا کہ وہ صحیح سے کام کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی ہیں تو وہ تو آپ کی بنے گی نا ذمہ داری. ILR کا ایک کمرہ ہے جہاں پہ ILR رکھے ہوئے ہیں, باہر رکھتے ہیں, سرنجز رکھتے ہیں. نہیں, یہ تو ایک کمرہ ایسا ہے جو بالکل قابل استعمال ہی نہیں تھا, اس کو آپ لوگوں نے بند کیا ہوا ہے. جی ہاں, جی وہاں پہ رکھی ہوئی ہے. اب وہاں پہ ویکسینیشن یا انجیکشن یا سرنجز وہاں سے نکلی ہیں اور وہ صحیح حالت میں, مطلب ابھی تک ایکسپائر نہیں ہوئی ہیں, تو وہ ان کی ٹیک کیئر کون کرے گا؟ پھر وہ بشرا صاحبہ ہی کریں گی یا آپ کریں گے؟ ذمہ داری ہماری ہے بیٹا. ڈاکٹر کا رویہ انتہائی معذرت خواہانہ تھا. زائد المیعاد ادویات کے بارے
में पूछा गया तो डॉक्टर ने बड़ी बेफिक्री से जवाब दिया ये डिस्कार्ड करने के लिए रखी गई होंगी, जबकि ये इत्तला डॉक्टर के लिए इंकिशाफ से कम न थी। डॉक्टर इस बात से कतई लाइल्म था कि उनके जेर इंतजाम डिस्पेंसरी में ज़ायदुल मियाद अद्वियात मौजूद थीं। जाहिर है मौसूफ अगर डिस्पेंसरी का रुख करते हों तो तभी उन्हें इस बात का इल्म हो सकता था कि डिस्पेंसरी किस हाल में है। अमले समेत खुद सरकारी मराहत और तनख्वाहों के मजे बिना कुछ किए मिल जाते हों तो कौन बेवकूफ तकलीफ करे और काम करे। नहीं, ये बिल्कुल वो बराबर में जो है वो कमरा है। अब वो कौन सा कमरा है कौन सा कमरा नहीं है, बहरहाल ये आपके डिस्पेंसरी के अंदर चीज़ें मौजूद हैं जी। और ये एक और भी मेडिसिन निकली है बच्चों के इस्तेमाल के लिए है, आर्टी मेथड है इसका फार्मूला। तो सर ये तो चीज़ें बच्चों के लिए बहुत ख़तरनाक हो जाएंगी अगर आप एक्सपायर्ड मेडिसिन उनको देना शुरू कर देंगे तो। सर तो बड़ी तादाद में क्यों मौजूद है? या तो इनको डिस्पोज कर दिया जाना चाहिए था, और ये तो डिस्पोज करना आपको सिर्फ एक लेटर लिखना है और लेटर लिखने के बाद आप डिस्पोज कर देंगे उनको। सर ये हमारे आने के बाद डिस्पोज ऑफ करा देना जो है ना वो कोई अच्छी बात तो नहीं है कि ये तो हमने आपको बताया ये आपका काम था करने का। नाजरीन एक काबिल अफसोस बात एक और भी सामने आई है। एक तो यहाँ पे एक्सपायर्ड मेडिसिन है, दूसरे इसके अलावा यहाँ पे फॉर ओपीडी इशूड 200 बैलेंस 100 ये तमाम चीज़ें ये, और फिर उसके बाद आगे रिसीविंग के साइन होना, ये एक अजीब सी चीज़ है कि गवर्नमेंट डिस्पेंसरी है, यहाँ पे बेसिक हेल्थ यूनिट है, ये यहाँ पे फीस लेना और वो भी 100 200 रुपये रहना। मरीजों से किसी प्राइवेट क्लिनिक की तरह पैसे वसूल करने की शिकायत भी मौजूद थी। देखो ये हालात क्या है, गंदगी कितनी है, ये इसमें जो है ना बिल्कुल कोई भी निज़ाम ठीक नहीं है। ओके, यहाँ पे बेसिक हेल्थ यूनिट के अंदर कुक होता है? जी होता है भाई, चाय के लिए चाय वगैरह बना के देने के लिए। मैं ऑलराउंडर हूँ, जो यानी कि कभी पर्ची लिख लेते हैं कोई बंदा। अब आज जैसे जो ना मैंने एंट्री की है पर्चियों की, वो मैंने की है। मरीज भी आए, 17 मरीज आप लोगों ने देखे भी कि जो बुक के अंदर लिखे मैंने लिखे। टीम गिरफ्त बल्दिया के इलाके रशीदाबाद की एक और सरकारी डिस्पेंसरी पहुंची, जहां पहले भी विजिट करके इस इमारत की ज़बूहाली को मंजर आम पर लाया गया था, लेकिन इतना अरसा गुजरने के बावजूद सरकारी इमारत मोहनजोदाड़ो का मंजर पेश कर रही थी। मखदूश इमारत की हालत जार नाकाबिल दीद थी। ताज्जुब था कि मीडिया पर आवाज बुलंद करने के बावजूद अरबाब इख्तियार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी थी। ये मखदूश इमारत जो आप तकरीबन मखदूश इमारत देख रहे हैं, ये एक डिस्पेंसरी की इमारत है जहाँ पे हम तकरीबन आज से 2 साल पहले भी आए थे और तमाम DHOs इन तमाम लोगों को यहाँ पे इसकी हालत ज़ार दिखाई गई थी, बताई गई थी। सिलसिला ये है कि यहाँ की हालत अब भी वैसे ही है जैसे पहले थी। ये हैं बुनियादी सेहत के मराकज़ जहाँ पे जिनकी खुद की बुनियादें जो है वो हिली हुई हैं। यहाँ पर तो बेहतरी की तरफ 1% भी सूरत नज़र नहीं आ रही है। आप खुद देख रहे हो, आपने देखा है, आपके कैमरे ने इसको कैच किया है। देखो ये हालात क्या है, गंदगी कितनी है, ये इसमें जो है ना बिल्कुल कोई भी निज़ाम ठीक नहीं है। ये तकरीबन आज से नहीं, कोई ये 5-6 साल से इस तरह से ये गंदगी और ये सिस्टम लगा हुआ है। इस डिस्पेंसरी में ना तो दवाई ढंग की मिलती है, ना कोई इलाज इतना खास हो रहा है। बस नाम की डिस्पेंसरी है और अपनी ये सरकारी तनख्वाहें अपनी जेबे में डाल रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं है। सारी गंदगी पड़ी हुई है। मैं तो बोलता हूँ कि यहाँ पर बंदा आए, बच्चे आए तो यहाँ पर वो इस गंदगी से बीमार हो जाएंगे। तो ये मेरे को जब एक जगह एक हॉस्पिटल, एक डिस्पेंसरी, यहाँ पर अगर सफाई का ख्याल नहीं रखा जाए तो मुझे बताओ फिर क्या होगा। मरीजों की जो एज है उसके लिहाज से ये मरीज़ों का रजिस्टर है, मरीज़ों का रिकॉर्ड है। क्या मरीज़ों का रिकॉर्ड इसी तरीके से किसी आम सी डायरी के अंदर होना चाहिए, किसी की पर्सनल डायरी हो सकती थी, लेकिन इसको इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ पे मरीज़ों का रिकॉर्ड रखने के लिए। अच्छा, यहाँ पे सूरत हाल ये है कि बर्तन भी रखे हुए हैं, चाय का सामान भी रखा हुआ है और साथ साथ दवाइयाँ भी रखी हुई हैं। तो ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे हमारे घर का कोई कैबिनेट हो जिसके अंदर दवाइयों के साथ साथ जो है वो बर्तन वगैरह भी रखे होते हैं।
अच्छा, ये बताएं फराज साहब कि ये सूरत हाल कब से आप देख रहे हैं इस तरीके? सर ये तो अरसा दराज से यही सूरत हाल है, और जिस तरीके से आपने ख़ुद भी देखा कि किस तरह जो है वो मामलात जलाया जा रहा है, और किस तरीके से ये आप देखें कि तो, और बाकी देखें आप छत की हालत, आप ज़रा कैमरा करें तो ये आपको सारा जो है नज़र आएगा कि ये किस तरीके से जो है ये चल रहा है, और मरीज़ों को किस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। ये किसकी नाअहली यहाँ पर हम कहें कि यहाँ पर डॉक्टर को आपने देखा कभी यहाँ पे? सर यहाँ पर डॉक्टर को तो हमने कभी भी जो है नहीं देखा सर। कंपाउंडर होता है सर, हम जब भी हमने विजिट किया, हम यहाँ पर 3-4 बार विजिट कर चुके हैं, जब भी हम यहाँ पर आते हैं डॉक्टर कोई नहीं होता है, कंपाउंडर यहाँ पर मौजूद होते हैं। तो वो जो जिस तरीके से, और मेरा ख्याल से इसीलिए इतनी बड़ी आबादी के पेशेंट यहाँ पर आना, यहाँ से ज़्यादा प्राइवेट जो है वो जो हॉस्पिटल है उनको तरजीह देते हैं। वजह क्या है कि यहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं है, यहाँ पर कोई दवाई नहीं है, यहाँ पर कोई ट्रीट करने वाला नहीं है। बस आते हैं, अपना जो एक पैकेज है वो चल रहा है, उसके मुताबिक हो रहा है। अगर यही हालात रहे तो मेरे ख्याल से क्या करेंगे गरीब वहाँ। जो सरकारी डॉक्टर हैं जिनकी यहाँ पे ड्यूटी लगाई गई है, उनकी गैर हाजिरी रहती है, और अगर उनसे पूछा जाए कि वो कहीं पे प्राइवेट क्लिनिक अपना करते हैं तो बिल्कुल प्राइवेट क्लिनिक करते होंगे, क्योंकि उन्होंने भी कमाना है। और सिर्फ ये नहीं कि कमाना है, दोनों हाथों से, चारों हाथ पैर से लोड घसोट के कमाना है, क्योंकि सिर्फ ये नहीं कि उन्हें अपने क्लिनिक चलाना है, बल्कि उनको साथ साथ अपने आप को जहाँ पे वो हल्फ उठाते हैं कि हम सर्व करेंगे, ह्यूमैनिटी को सर्व करेंगे, वहाँ ह्यूमैनिटी को सर्व करने के बजाय अपना पर्पस सर्व किया जाता है और अपनी तमाम ख्वाहिशात को पूरा किया जाता है। मरीज़ों को अगर एक्सपायर्ड मेडिसिन देनी पड़ जाएं किसी सरकारी डिस्पेंसरी के अंदर तो वो भी देने के लिए तैयार हैं, और साथ साथ अपने प्राइवेट क्लिनिक्स के ऊपर जहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की अद्वियात दवा साज कंपनियाँ उनको कमीशन देती हैं, वहाँ पे उनकी दवाइयाँ रखी जाती हैं, लिखी जाती हैं, और उनको कारोबार अच्छे तरीके से दिया जाता है। और यही सारी सूरत हाल है। अगर कोई ऐसी सूरत हाल निकल आए कि जो डॉक्टर्स सरकारी किसी भी ड्यूटी पे, किसी भी डिस्पेंसरी पे मौजूद हैं, उनको हुकूमत की तरफ से मना कर दिया जाए, उनके ऊपर पाबंदी लगा दी जाए कि वो अपना प्राइवेट क्लिनिक किसी भी सूरत में नहीं कर सकते, ना सुबह के औकात में, ना शाम के औकात में, तो शायद यहाँ पे ये डॉक्टर्स नज़र आए। इस हॉस्पिटल को, इस डिस्पेंसरी को कम से कम इतना करे कि यहाँ जो मेडिसिन पड़ी हुई है, मेडिसिन तो हमें प्रोवाइड करें ना। यहाँ मेडिसिन तो यहाँ पे हमने देखी नहीं, कुछ है ही नहीं। सब मेडिसिन नहीं है, यहाँ के मकामी लोग अपनी मदद आपके तहत कुछ पैसे करके, चंदा वगैरह करके यहाँ मेडिसिन देते हैं, और वो फिर हम मरीजों को देते हैं। यहाँ के मकामी लोग वहाँ बात सुनो, ये यहाँ कहने से ये नहीं होगा। हमारे पास मेडिसिन जब तक नहीं आएगी हम डॉक्टर को पाबंद नहीं कर सकते। ये अपनी मदद आप मेडिसिन लेके आ रहे हैं, तो डॉक्टर यहाँ पे बैठेगा तो मेडिसिन आएगी। सर क्या फायदा हुआ है? गरीब आदमी जो है ना, मतलब 100 रुपए दिहाड़ी वाला जाके उसके लिए 500 रुपए वो बाहर से वो दवाई खरीद सकता है। मखदूश इमारत का तिब्बी अमला भी गायब था। फकत एक चौकीदार और एक और शख्स से मुलाकात हुई जिसका कहना था कि वो बावर्ची है लेकिन ऑलराउंडर है, पर्ची बनाने से दवा देने तक का सारा काम जानता है। मैं कुक हूँ। यहाँ पे बेसिक हेल्थ यूनिट के अंदर कुक होता है? जी होता है भाई, चाय के लिए, चाय वगैरह बना के देने के लिए। मैं ऑलराउंडर हूँ, जो यानी कि कभी पर्ची लिख लेते हैं कोई बंदा। अब आज जैसे जो ना मैंने एंट्री की है पर्चियों की, वो मैंने की है। मरीज भी आए, 17 मरीज आप लोगों ने देखे भी है कि जो बुक के अंदर लिखे मैंने लिखे। कितनी तालीम है आपकी? मेरी मिडल है। अच्छा सर, आप क्या करते हैं यहाँ पे? सर मैं दवाई पे बैठता हूँ। डिस्पेंसर है? नहीं, जनरल सर्वेंट की पोस्ट है मेरी, झूठ क्यों? अच्छा, मतलब डिस्पेंसर नहीं है लेकिन दवाइयाँ देते हैं। कौन कौन सी दवाइयाँ हैं यहाँ पे मौजूद? लोकल दवाइयाँ सारी, पेरा CPM सोडा मेडवॉक्स। फर्नीचर और दीवार पर जमी हुई गर्द से साफ जाहिर था कि एक मुद्दत से तिब्बी अमले ने इस तरफ रुख ही नहीं किया था। टीम गिरफ्त के हाथ तिब्बी अमले का हाजिरी रजिस्टर लग गया। ये जी जनाब सितंबर 2020 का अटेंडेंस है। तमाम लोग जो है वो प्रेजेंट हैं और कोई भी गैर हाजिरी नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में यहाँ पे जो आप सिलसिला देख रहे हैं, तो ये तमाम सूरत हाल देखते हुए ये हो रहा है इलाज। नाजरीन मुलाहिजा कर सकते हैं कि गायब अमले की हाजिरी जा बजा लगी हुई थी। जिन्नाती अमला नजरों से ओझल था लेकिन सरकारी रजिस्टर में हाजिरी मौजूद थी। ये है सूरत हाल, ये था हाजिरी रजिस्टर जो ये छुपा रहे थे, इस कमरे के अंदर बंद करके रखा हुआ था। ये थी सूरत हाल यहाँ की कि यहाँ पे जो ताला लगाया गया था
وہ اس وجہ سے لگایا گیا تھا کہ یہاں پہ ان کی جو چیزیں ہیں وہ سامنے نہ آ سکیں، تو یہ چیزیں ان کے سامنے آ گئی ہیں۔ ٹیم گرفت کے ساتھ آئے ہوئے عوام اور ڈسپنسری عملے کے کچھ نام نہاد ملازموں کے درمیان تو میں شروع ہو گئی۔ عملہ سرکاری رجسٹر کو ہاتھ لگانے کی بنیاد پر انجام بد کی دھمکیاں دے رہا تھا۔ ظاہر ہے یہ وہ کام ہے جو حکام بالا کرتے چلے آئے ہیں، اور وہ یہ کہ پہلے تو کوئی کام نہ کرو، پھر وسائل کی کمی کا رونا رو، اور پھر اگر چوری پکڑی جائے تو سینہ زوری سے کام لو، تاکہ آنے والے پھر ہمت نہ کریں اس طرف رخ کرنے کا۔ لیکن یہ ان کی خام خیالی ہے۔ جب تک یہ عملہ اور یہاں تعینات ڈاکٹرز اپنے فرائض کی انجام دہی صحیح طریقے سے نہیں کرتے، ان کا مکروہ چہرہ بے نقاب ہوتا رہے گا۔ سارے لوگ مل کے ایک ساتھ کرپشن کرتے ہیں، سب ایک دوسرے کو بچا رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ حاضری رجسٹر آپ کو نکال کے دکھا دیا گیا ہے کہ کس کس کی اٹینڈنس موجود ہے، کوئی بھی غیر حاضر نہیں ہے، اور جو حاضر لوگ ہیں تو اب لڑ رہے ہیں عوام کے ساتھ کہ ہم یہاں پہ تمام سہولتیں دیتے ہیں۔ کیا سہولت دیتے ہیں؟ یہ سب آپ کے سامنے ہے کہ ایک ایک چیز یہاں پہ ٹوٹی ہوئی ہے، کوئی ایک دوائی بھی نہیں ملتی۔ تو یہ اپنی کرپشن کو چھپانے کے لیے اب دوسرے جو عوام میں لوگ موجود تھے، وہ جو ہمارے ساتھ آئے تھے، جو شکایتیں بیان کر رہے تھے، ان کے ساتھ وہ اب لڑ رہے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے وہ زبردستی گھس رہے ہیں اور جو آفیشیل ریکارڈ ہے اس کو ہاتھ لگا رہے ہیں۔ سندھ حکومت اور KMC کے زیر انتظام سرکاری کلینکس میں اس درجے کی بے ضابطگیاں تعجب خیز ہیں۔ اوپر سے نیچے تک کرپشن اور جعلسازی میں ملی بھگت کا مربوط نظام ہے۔ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی غفلت اور ناقص کارکردگی کی وجہ سے لاکھوں شہریوں کی جانیں داؤ پر لگی ہوئی ہیں۔ گھوست ملازمین اور کالی بھیڑوں کے خلاف کارروائی کے دعوے تو سنائی دیتے ہیں، لیکن عمل درآمد ہوتا نظر نہیں آتا۔ یقیناً خالی زبانی جمع خرچ سے غریب عوام کی جانوں کا تحفظ نہیں کیا جا سکتا۔ KMC اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی محاذ آرائی میں غریب مریضوں کی درگت بن رہی ہے۔ عوام دوست حکومتیں اور باشعور اقوام علاج اور معالجے کے شعبے پر خصوصی توجہ دیا کرتے ہیں، اور معمولی سی بے ضابطگی کی گنجائش بھی نہیں رکھی جاتی، لیکن پاکستان میں علاج معالجے کا شعبہ بھی جعلسازوں اور انتظامیہ کی کالی بھیڑوں کے رحم و کرم پر ہے۔ سنجیدہ ذہن سوچنے پر مجبور ہے کہ سرکاری محکموں میں موجود عوام دشمن عناصر کے خلاف حکام بالا حرکت میں کیوں نہیں آتے، اور یہ کیسی تبدیلی ہے جسے ہر روز سنا تو جا سکتا ہے لیکن محسوس نہیں کیا جا سکتا۔ جب تک عوام کے علاج کے حق کی فراہمی کو یقینی نہیں بنایا جاتا، ٹیم گرفت عوام دشمن عناصر کے خلاف آواز بلند کرتی رہے گی۔